Good morning students. Now second part, chapter number 6 and point number 4. नेत्रोपैथी के हमने 4 पॉइंट्स देखे थे। वाटर थेरेपी, क्ले ट्रीटमेंट, सनलाइट ट्रीटमेंट एंड एयर ट्रीटमेंट। इसका एक पॉइंट देखेंगे, वाटर थेरेपी. Water therapy means the therapy being given by various water experiments. Water has tendency to catch up both the heat and the cold. When there is fever, cold water piece of cold cloth is applied, which lessens the fever. Mostly such piece of cloth is put on the forehead of the patient. Such piece of water can also be put on the stomach. વોટર થેરેપીની જળ ચિકિત્સા એની પાણી કે દ્વારા થેરેપી કરી ગઈ કે જળ ચિકિત્સા એટલે એની પાણી की થેરેપી એની પાણીના વિવિધ પ્રયોગ દ્વારા કરવામાં આવતી चिकित्सा. पानी के द्वारा करने में आने वाली चिकित्सा એની પાણીમાં ગરમી અને ઠંડી બંને પકડવાની ક્ષમતા રહેલી છે. એની પાણી के अंदर गरम और ठंडा दोनों की क्षमता है. તાવ આવે ત્યારે ઠંડા પાણીના પોતા મૂકવાથી તાવની માત્રા कम ओछी થાય છે. यानी जब फीवर आता है तो फीवर कम करने के लिए जो है ठंडे पानी का हम सर पे पटा रखते हैं तो उससे क्या हमारा फीवर कम हो जाता है. खास કરીને કાપડ ઉપર ઠંડા પાણીવાળી પટ્ટી મૂકવામાં આવે છે. પેટ ઉપર પણ ઠંડા પોતા મૂકી શકાય. और खासकर जो है हमारे जो फोरहेड यानी सर के ऊपर जो है ठंडे पानी की पट्टी रखते हैं और क्या कहते हैं हमारे पेट के ऊपर भी. तो इससे क्या है हमारा जो फीवर है वो क्या है कम हो जाता है. When there is sprain on the ankle of the leg or when there is swelling on any part of the body, hot water fominations is given which reduce the swelling. From this type of fominations, hot water bag can be used filled with hot water to reduce the swelling. Another method of dipping the swelled part of the body ultimately in hot and cold water for the duration of 1 minute each. પગે મચક આવી ગઈ હોય અથવા શરીરના કોઈ પણ ભાગોમાં बैठा मारने कारण सोजे આવી गई हो यानी पैर में कोई भी प्रकार की जो है जैसे सूजन आ गई हो तो गर्म पानी का सेक करने से वो सूजन क्या है वो दूर हो जाती है. कि रबड़ की जो थैली होती है उसके अंदर हम गर्म पानी डाल के उससे अगर हम सेक करेंगे तो जो भी सूजन वगैरह होती है तो वो क्या है वो दूर हो जाती है. ओवर एंड एबो वेपर बेथ और स्टीम बाथ एनीमिया etc. एक्सपेरिमेंटल ट्रीटमेंट्स ऑल्सो कैन बी डन. આ ઉપરાંત વારળ સ્નાન એનિમા વગેરે જેવા પાણીના ઉપચારો પણ કરી શકાય. નંબર 2 ક્લે ટ્રીટમેન્ટ એની માટીના ઉપચારો. ક્લે gives cooling effect, absorbs the poisons and reduce swelling, burning etc. Ponds clay without sticky black mold or the clay on an hill should be dried in the sunshine. It should be cleaned and crushed and then should be sifted and it should be drained. One should take care that there are no chemicals, dirt and unpleasant smell. Such drenched clay should be applied on the respective organs of the body in thick layer. Such clay can be applied on the stomach, the inner part of the
abdomen, below the navel, over the eye lid and lower the spine. हम क्ले ट्रीटमेंट यानी क्या है, माटी से उपचार यानी मिट्टी के द्वारा भी उपचार कर सकते हैं कि जैसे कि इसने बताया है कि माटी जो है मट्टी जो है वो हमको क्या देती है, वो ठंडक देती है। જેને શેષી લેનાર, સોજે દહા તેમજ બાળતરને ઘટાડનાર છે, यानी कहीं भी सूजन आ जावे तो उसके लिए भी क्या हम मट्टी का यूज़ कर सकते हैं। अब वो मट्टी कैसी होती है, जैसे यहाँ पे बताया, તળાવની કામ વગરની માટી કે રાફડાની માટીને તળાવમાં સુકાવીને તેને સાફ કર્યા। यानी क्या है, जो तालाब के पास जो मिट्टी होती है, राफड़ा यानी जो चींटियाँ होती है, जो उसके करीब जो मिट्टी होती है, वो मिट्टी जो सूरज के सनसाइन हो यानी सूरज के नीचे हो, उसको सूरज के नीचे सुखाने से फिर उसको क्या करने का, उसको खूब कूटीने चढ़िया बाद उसको छान लेने का, फिर वासण में यानी एक क्या कहते हैं बर्तन में जो है उसको भिगो देने का। और फिर आवी माटी में रसायनों की गंदगी जो है वो क्या, दुर्गंध क्या है, वो दूर हो जाती है। और इसका ख्याल बहुत रखना चाहिए कि क्योंकि मिट्टी में से जो है जो दुर्गंध जो गंदगी है वो साफ़ हो जानी चाहिए। આવી પલાળેલી માટી જ તે અવ્યય ઉપર લગાવીને તેનો ઉપયોગ કરવાનો રહે। यानी इस तरह जो मट्टी जो पानी में भिगो के फिर उसके बाद जो है उसकी सारी गंदगी और निकल जाए, उसके बाद जो है जहाँ हमको तकलीफ़ हो उसको पट्टे के तौर पे उसको लगा के हमको पट्टा बांध देना चाहिए। इससे क्या है वो तो कम हो जाता है। पेड़ों ऊपर, आँख ऊपर અને કરોડ ઉપર पर મૂકી શકાય, यानी पेट ऊपर, पेड़ों ऊपर, आँख ऊपर, ये सब भी जगह हम ये मिट्टी लगा सकते हैं। सनलाइट ट्रीटमेंट्स, सूर्य प्रकाश ना उपचार, सूर्य यानी सूरज की रोशनी के द्वारा उपचार। अंडर द सनलाइट वेरियस इंसेक्ट्स कैन नॉट हार्म सेज, कहते सूर्यप्रकाशની ઉપસ્થિતિમાં અનેક પ્રકારના જીવજંતુઓ આપણને નુકસાન કરી सकता नहीं। यानी कि ये आप जानते होंगे कि सूरज की रोशनी में रहने से जो हमारे अंदर के जो जंतुनाशक यानी जो वायरस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। इसके लिए डॉक्टर लोग भी सलाह देते हैं कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा जो है सुबह के टाइम क्या कहते हैं सूर्य का प्रकाश हमको लेना ज़रूरी होता है। इससे क्या हमारी जो बॉडी का जो मेंटेनेंस होता है वो बहुत अच्छे से रहता है। आफ्टर सनराइज इफ़ वी स्टैंड अंडर द सनलाइट फॉर हाफ एन आवर इंक्रीज द लस्टर यानी तेज ऑफ आवर आइज। द अल्ट्रावायलेट रेज इन द सनलाइट हेल्प अस गेटिंग विटामिन डी विच स्ट्रेन आवर बोन्स। કે વહેલી સવારે સૂર્યોદય પછી એની क्या दिया, आफ्टर सनराइज इफ़ वी स्टैंड કે વહેલી સવારે સૂર્યોદય પછી અડધા કલાક સુધી જે સૂર્યપ્રકાશમાં ઊભા રહીએ તો આપણી આँखोंને तेज વધારી શકે। यानी सुबह जो है हमको जल्दी उठकर आधे घंटे जो है सूरज की रोशनी में रहने का यानी वो हमारी आँखों पे पड़ना चाहिए। इससे क्या हमारी जो आँख की रोशनी जो होती है वो बढ़ती है। इससे हमारे लिए हमारी आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और इससे जो है हमको जो सूरज की रोशनी में से जो पर जामनी कलर की एक होती है वो रोशनी अगर हमको मिलती है तो उससे हमको क्या, हमारे को विटामिन डी की जो कमी होती है वो पूरा हो जाती है। और उसकी वजह से जो हमारे बोन्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं, वो मजबूत हो जाते हैं। If there is swelling on any part of our body and if that part is buried under the hot sand of the river, it reduces the swelling. જે શરીરના જે અંગ પર સોજે આવ્યો હોય, वो शरीर पे कहीं भी हमको सूजन आई हो ते अंग ने यानी उस पार्ट को जो है नदी के पास जो तपे गर्म रेती होती है उसको हम जो है सूजन के ऊपर बांध लेंगे तो उससे क्या है वो क्या कहते हैं सूजन जो है वो कम हो जाती है। एयर ट्रीटमेंट, हवा के द्वारा पद्धति उपचार यानी हवा के द्वारा। एयर इज एनिमेट पावर प्राण ऑफ द ह्यूमन बॉडी। इन इट्स एब्सेंस अ मैन कैन नॉट सर्विस
सर्vive, especially the individuals having the troubles of lungs. Weak lungs should work in the open air. They should keep the windows and the doors of their houses open to get enough air. हवा उपचार, आपको पता ही होगा कि हवा जो है हम मानव शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हवा नहीं होगी तो मानव शरीर जो है वो जिंदा ही नहीं रहेगा। कि हवा की अनुपस्थिति में जो है मानस जो इंसान जो है वो जी ही नहीं सकता। खासकर जिनको फेफड़े की लंग्स की प्रॉब्लम होती है, कि जिनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, इसके लिए उनको ज़्यादातर खुले वातावरण में रहना ज़रूरी होता है। के और अपने घर के विंडोज़ वगैरह, दरवाजे वगैरह जितना हो सके उतना ओपन रखना चाहिए, कि ताकि घर में हमारी क्या कहते हैं हवा आ सके, उससे हमको भी क्या कहते हैं सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए मानव जीवन के लिए जो है एयर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एयर के बिना लाइफ हमारी क्या है वो ख़त्म हो जाती है। To increase the efficiency of feeling more air in the lungs, one should practice brahmachari pranayam, anulom vinulom pranayam, etc. Over and above, one should inhale deeply and slowly with hold the breath in the lungs for few seconds and then exhale in slowly. यानी जिनको लंग्स की सांस लेने की प्रॉब्लम होती है तो उनके लिए जो है क्या है अनुलोम विलोम की जो प्राणायाम होता है वो करना बहुत ज़रूरी होता है। उससे क्या कहते हैं हम सांस लेते और छोड़ते रहे, जैसे कि इससे के पहले हमने लेसन में देखा है अनुलोम विलोम की प्रक्रिया कैसे करी जाती है। पहले सांस हमको लेना और छोड़ना है, फिर उसके बाद जो हमको सांस जो हमारे लंग्स के अंदर लेना है, फिर उसके बाद धीरे धीरे हमको सांस छोड़ना है। तो इससे क्या है हमारे जो लंग्स होते हैं वो क्या है वो मजबूत होते हैं। ओवर एंड अबव द ट्रीटमेंट सो अबव वन शुड ऑब्जर्व फास्टिंग शुड टेकन बैलेंस डाइट शुड बी परफॉर्म लाइट टाइप ऑफ आसन्स एंड प्राणायाम्स टू ऑब्जर्व मॉरली गुड कंडक्ट्स ऑफ यम नियम शुड प्रैक्टिस द रिलैक्सिंग एक्शन एंड इनफ रेस्ट एंड स्लीप शुड बी टेकन। ઉપરના ઉપચારો ઉપરાંત શારીરિક ક્રિયાઓ સક્ષમ બની રહે તે માટે ઉપવાસ, સમતોલ આહાર, કેટલાક હળવા આસનો, પ્રાણાયામની ક્રિયા, યમ નિયમ, સદાચાર, શીતળતાની ક્રિયાઓ અને પૂરતો આરામ અને ઊંઘ લેવો જોઈએ। यानी हमने इससे पहले जो है हमने ऊपर के ट्रीटमेंट देखे कि हमको क्या उपवास भी करना चाहिए, संतुलन आहार भी लेना चाहिए और फिर आसन भी करना चाहिए, प्राणायाम भी करना चाहिए, यम नियम के जो सदाचार होते हैं वो भी करना चाहिए। इससे क्या है जो हमारी शीतलता क्रिया जो है उसको वो भी करना चाहिए और इससे क्या है हमको पूरा आराम भी करना चाहिए और हमको नींद भी अच्छी लेनी चाहिए। तो इससे क्या है हमारे बॉडी का जो संतुलन है वो परफेक्ट रहता है। नाउ 5th पॉइंट, यूनानी ट्रीटमेंट यानी थेरेपी। इन यूनानी ट्रीटमेंट द फॉलोइंग 4 मैटर्स आर इम्पॉर्टेंट। यूनानी ट्रीटमेंट के जो 4 मैटर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 दम, ब्लड, हॉट एंड मॉइस्चर यानी भीनाशवाળું। नंबर 2 बलगम, कोल्ड एंड मॉइस्चर, बलगम ठंडू અને ભીનું। नंबर 3 साफा, येलो एसिडिटी, हॉट एंड ड्राई, पीड़ू पित्त कहते हैं और गरम અને सूखू। सोफा, ब्लैक एसिडिटी, कोल्ड एंड ड्राई। सोफा काळું પિત્ત, ठंडू અને सूखू। If these 4 are in proper preparations, individuals is considered healthy. If
There is some observation in the preparation increase the disease. આ ચાર वस्तु सप्रमाण हो तो व्यक्ति तंदुरुस्त गणा। यानी ये चारों चीज़ जो है अगर इंसान के अंदर होती है तो वो इंसान क्या है, वो हेल्दी दिखाई देता है। तेमा अवरोध उत्पन्न थाय तो रोग उत्पन्न थाय। सारवार ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ पासिंग मोर अर्निंग વધારે અને બાય મીન્સ ઓફ પાસિંગ મોર અર્નિંગ એને વધારે મૂત્ર કરવાની એની ગિવિંગ ટર્કીશ સ્નાન આપીને बाय मीन्स ऑफ मसाज मालिश करने का बाय मीन्स ऑफ मोर मोशन और मोर वोमिटिंग વધારે ઝાડા કરાવીને કે ઉલટી કરાવીને। બી બાય મીન્સ ઓફ ફૂડ બાય મીન્સ ઓફ ગિવિંગ ફ્રૂટ જ્यूसेस एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड खुराक द्वारा यानी खाने के द्वारा फळनो रस के जुदा जुदा खुराक आपीने यानी फ्रूट का जूस पियो या अलग अलग टाइप के खाना खाओ। बाय मीन्स ऑफ मेडिसिन और अलग अलग तरीके की दवाओं द्वारा द मेडिसिन्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द ट्रीज फ्रूट्स एंड फ्लावर्स झाड़ मूळ फळ फूलमांथी मळती दवाओ। द मेडिसिन्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एनिमल्स प्राणीओमांथी बनावेली दवाओ। द मेडिसिन्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम सॉल्ट्स क्षारमांथी बनावेली दवाओ। द यूनानी मेडिसिन गिव गुड रिजल्ट्स in the disease like arthritis, लोकोड्रोमा, जोंडिस, अस्थमा etc. यूनानी दवाओं साधनों वा कमळो, कोड़, दमनो रोग वगैरह जेवा रोगों में सारा परिणाम आवे छे। यानी यूनानी दवा का जो इस्तेमाल करने से जैसे वाह एक बीमारी होती है, कमड़ो होता है, कोड़ होता है, दम की बीमारी होती है, जॉन्डिस, अस्थमा का, तो ये सब जो है ये सब बीमारी में जो है यूनानी की थेरेपी जो है वो ज़्यादातर लाभदायक होती है। नाउ 6 पॉइंट्स एलोपैथी। इन द मॉडर्न टाइम एलोपैथी therapeutic methods has been accepted by all. Since it is based on logic and transparent, the whole world has universally accepted it as the scientific method. This method is widely in use with new research and the developments of the technology. New changes are incorporated in this method. It means this method is ever changing based on scientific principles. पर्वतमान समय में एलोपैथीनो उपचार पद्धति सर्व स्वीकृति बनी है। ते तर्क पर आधारित तेमज पारदर्शक होवाथी दुनियाभर में तेने वैज्ञानिक पद्धति तरीके मानवामां आवेल छे। तेथी ज तेनो उपयोग पण बहोळो छे। जेम जेम नवी शोधो थती जाय छे, टेक्नोलॉजी विकास थतो जाय छे, तेम तेम आ पद्धति में योग्य फेरफार पण थता ज रहे। एटले कि आ पद्धति वैज्ञानिकों सिद्धांतों आधारित परिवर्तनशील पण छे। यानी एलोपैथिक जो है वो पर्वतमान समय में उपचार यानी बनी हुई है कि आ तर्क पर आधारित तेमज पारदर्शक होवाथी दुनियाभर में तेने वैज्ञानिक पद्धति तरीके मानवामां आवेल छे। यानी ये एलोपैथिक जो दवा जो है वो वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा जो है मानवामां आवे छे कि तेथी तेनो उपयोग इसका इस्तेमाल भी जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे जैसे इसका उपयोग ज़्यादा हो रहा है, जैसे जैसे इसकी शोध भी आगे हो रही है, टेक्नोलॉजी का जैसा विकास बढ़ रहा है, उसी तरह जो है एलोपैथी की पद्धति में भी योग्य फेरफार जो है देखने को मिलता है। और एलोपैथिक जो पद्धति जो है वो वैज्ञानिकों द्वारा आधारित परिवर्तनशील है।
This method is most efficient to examine all the parts and the sub parts of the body and for the treatment of disease developed in it. This method can join hand to hand with the prevalent time accepting research and new technology based on experience. But the limitation of this modern method is that medicines used in this method have side effects. Second limitation is this that new disease this method gives very little relief. Asthma, kharaju, some skin diseases and the cold and cannot be removed from their roots. કે આ પદ્ધતિના શરીરના દરેક અંગો અને ઉપાંગોની તપાસ કરવા તથા તેમાં ઉત્પન્ન થતા રોગોની સારવાર કરવા સૌથી વધારે સક્ષમ છે. यानी इस एलोपैथी में जो है पहले पूरी बॉडी का जो है क्या वो चेकअप होता है, उसके बाद ही इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट होता है. संशोधन અને અનુભવે પર આધારિત નવીકરણને અપનાવતી આ પદ્ધતિ સમય સાથે તાલ મિલાવી શકે છે, પરંતુ આ આધુનિક ચિકિત્સાની મર્યાદા એ છે કે તેમાં વાપરતી દવાઓની ઘણીવાર અસર થાય છે. બીજી મર્યાદા એ છે કે અમુક રોગોમાં આ ચિકિત્સાથી જૂજ રાહત મળતી હોય છે. દાખલા તરીકે ખરજવું, કેટલાક ચમડીના રોગો તથા શરદી જેવા રોગો આ દવાથી મૂળમાંથી નાબૂદ કરી શકતા નથી. यानी इस पद्धति को जो है खासकर जो है जैसे खरजे की बीमारी होती है, स्किन प्रॉब्लम होती है, तो ये सब जो है ये सब बीमारी जो है वो उसको एकदम उसको नहीं ख़त्म कर देती है, नेस्त नाबूद कर देती है. देर आर सो मैनी ब्रांचेस ऑफ दिस मेथड: सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, कार्डियोलॉजी, एनेस्थेसियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गायनोलॉजी, पैथोलॉजी, डेंटिस्ट्री, ईयर, नोज एंड थ्रोट ब्रांच, ENT, psychotherapy, etc. Some other branches regarding different diseases also are developed. આ પદ્ધતિની અનેક શાખાઓ છે. यानी इस पद्धति की जो है बहुत सारी शाखाएँ हैं, જેમાં सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, कार्डियोलॉजी, एनेस्थेसियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, गायनोकोलॉजी, पैथोलॉजी, डेंटिस्ट, ENT, ईयर, नोज एंड थ्रोट, फिजियोथेरेपी वगैरहનો સમાવેશ થાય છે. Here the more prevalent treatments and therapeutic methods are listed. Some methods are less prevalent and only limited person make their use. કે આ ઉપરાંત અનેક પ્રકારના રોગને લાગતી અલગ અલગ શાખાઓ પણ ખૂબ વિકસી છે. અહીં જે વધારે પ્રચલિત છે ઉપચાર ચિકિત્સા પદ્ધતિ વિશે માહિતી આપવામાં આવી છે. આ ચિકિત્સા પદ્ધતિ ઉપરાંત કેટલાક ચિકિત્સા પદ્ધતિ એવી છે કે જે ઓછી પ્રચલિત છે પરંતુ તેના માનવ સમાજમાં બહોળો નહીં પરંતુ सीमित उपयोग થાય છે. આ પદ્ધતિઓ નીચે પ્રમાણે છે. यानी इसमें दिया है कि मानव चिकित्सा की कुछ पद्धति ऐसी है कि जिनका ज़्यादा जो है वो प्रचलित नहीं है, फिर भी वो बहुत अच्छी पद्धति है, जिसके बारे में नीचे ये नाम दिए हैं कुछ हम मेथड से. एक्यूप्रेशर અને एक्यूपंक्चर, मैग्नेट ट्रीटमेंट यानी सुगंध द्वारा चिकित्सा, शिवाम्बू ट्रीटमेंट मेथड यानी लो चुंबकीय सारवार, कलर थेरेपी शिव शंभू ट्रीटमेंट मेथड
यानी शिव शंभु उपचार पद्धति, कलर थेरेपी यानी रंग द्वारा थेरेपी, और मैग्नेट ट्रीटमेंट यानी लोहू चुंबक द्वारा सारवार, टच थेरेपी स्पर्श द्वारा चिकित्सा, अरोमा थेरेपी यानी सुगंध द्वारा चिकित्सा, म्यूजिक थेरेपी संगीत द्वारा चिकित्सा, हाइपोमोटिज्म थेरेपी सम्मोहन द्वारा चिकित्सा, लाफ्टर थेरेपी हास्य द्वारा चिकित्सा, और रेकी थेरेपी यानी रेकी चिकित्सा। प्रिस्क्रिप्ट एंड अनप्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन, लेखित અને બિનલેખિત દવાઓ। This medicine which cannot be issued without the prescriptions of a doctor are called prescribed medicines. Before using such medicines, one has to understand all instructions of the doctor regarding the medicine. If the instructions are not taken into consideration, it may lead to serious results. Hence, such medicines cannot be given without the prescriptions, or and above the medicines can be sold as per the instructions and the prescribed does. In the case memo of such medicines, the information regarding the batch number must necessarily by written. Lost tablets cannot be sold. The tablets are to be given in the prescribed number and properly packed. इसमें क्या दिया है कि लेखित और बिन लेखित दवा, तो यहाँ पे दिया है લેખિત અને બિનલેખિત દવા। ડૉક્ટરના ડિસ્ક્રેશનથી જે વેચી શકાય તેને લેખિત દવા કહેવાય। यानी जो डॉक्टर हमको दवा लिख के देते हैं तो उनको और उनके थ्रू जो हम दवा लेते हैं तो वो लेखित दवा होती है। આવી દવાઓનો ઉપયોગ કરતાં પહેલાં તે દવાઓને સંબંધી डॉक्टरना બધા આદેશો સમજી લેવા પડે છે। यानी जो डॉक्टर हमको दवा लिख के देते हैं तो वो उस दवा को लेने से पहले उसके जो जितने डिस्क्रिप्शन होते हैं वो हमको पूरा समझना पड़ता है। તેમ ના કરવાથી ગંભીર પરિણામો આવવાની શક્યતા રહેલી હોય છે। अगर हम उसके डिस्क्रिप्शन को नहीं समझेंगे तो इससे क्या है हमको बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। તેથી લખાણ વગર આવી દવાઓ આપી सकती નથી। यानी बिना लिखे जो है हम कोई भी दवा डॉक्टर से बिना लिखे हम कोई भी दवा यूज़ नहीं कर सकते। उपरांत जे प्रकारनी दवा लखी होय ते ज दवा लख्या प्रमाणोना जत्था जेटली वेची शकाय। यानी जितना डॉक्टर ने लिखा है उतनी ही यानी केस मेमो यानी उतनी ही दवा हमको बेचनी चाहिए। द इन्फॉर्मेशन आ दवाओना केस मेमो तेनी बेचनीनी विगतो जाणवी फरजियात छे। यानी ये दवा की केस मेमो और केस मेमो का होना बहुत ज़रूरी होता है। छुट्टी गोळीओ वेचवानी छूट नहीं। योग्य रीते निश्चित जत्था में पैक करेली गोळीओ ज आपी शकाय। यानी यानी जो छुट्टक बंद में जो छुट्टक में आती है हमको वो गोली नहीं बेचना चाहिए बल्कि उसको एक पैकेज में करके बेचना चाहिए। Unprescribed medicines can be purchased from any medical store like purchasing the household things. A purchaser has to use these medicines for household treatment. Even then, the best thing is that such medicines also should be purchased as per the advice of a doctor. Unfortunately, the rules regarding the medicines are not observed. Even the medical store keepers easily give such medicines. They give low tablets also. As a result, the conditions harmful to the health is created. Hence, the government and the vigilant institutions should start intense movement and the people should be saved from the such action. अभी इसमें क्या दिया है कि बिन लेखित दवाओं अनप्रिस्क्राइब्ड
यानी जो डॉक्टर जो है जो दवा नहीं लिखी जाती है वो है કે બિન લેખિત દવાઓ કોઈ પણ દવાવાળાની દુકાનથી બીજી ઘર વપરાશની વસ્તુ જેમ વેચાતી લઈ શકાય છે। यानी जो डॉक्टर के थ्रू नहीं लिखी गई हो, जो मेडिकल स्टोर पे मिलती है, ऐसी दवाओं को जो बिन लेखિત દવા કહેते हैं। ગ્રાહકે તેનો ઉપયોગ ઘરગથ્થુ સારવાર માટે પોતાના જોખમે કરવાનો હોય છે, પરંતુ उत्तम है कि આવી દવાઓ पर डॉक्टर की सलाह मुजब लेवी। यानी मेडिकल पे जो दवा मिलती है वो भी दवा जो है हमको डॉक्टर्स के मुताबिक ही लेना चाहिए। दुर्भाग्य लेखित दवाओं संबंधित नियमों पाळता नहीं। यानी हम जो है बिना लेखित दवा हम ले लेते हैं और उसके जो नियम होते हैं हम उसको यूज़ नहीं करते। वળી बिना પ્રિસ્ક્રિપ્શન્સ દવાવાળો સહેલાઈથી દવા વેચતો હોય છે, તેઓ છૂટી ગોળીઓ પણ આપે છે, પરિણામે સ્વાસ્થ્યને નુકસાન કરતા પરિસ્થિતિ સર્જાય છે। સામૂહિક ઝુંબેશ ઉપાડી આવી हरकतों जन समुदाय ने बचावो જોઈએ। यानी मेडिकल वाले जो है वो जत्था बंद में जो है वो दवा नहीं बेचते हैं, छुट्टी गोलियाँ भी बेचते हैं। तो इसके वजह से जो है क्या है हमको हार्मफुल यानी हमको तकलीफ़ होती है, ऐसी दवा हमको खाने से हमको नुकसान भी कर सकता है। इसके लिए हमको बिन लेखित दवाओं से हमको दूर रहना चाहिए और अपनी हेल्थ की संरक्षण यानी सुरक्षा करना चाहिए। ओके, नाउ यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट में। ओके, बाय।